Hello everyone, welcome back or welcome to the Scholar Garden where little minds bloom. Today we are going to learn class 6th science chapter 13 fun with magnets. In this chapter we will understand what magnets are, types of magnets, magnetic materials, poles of a magnet, attraction and repulsion and how magnets help us find directions. So let's begin. We will cover this chapter through a PPT. So yes, let's start with the chapter. It's Fun with Magnet, Classic Science, Chapter 13. But here would be Fun with Magnet, not exploring the magical world of magnetic forces and their fascinating properties. Yes, let's move. Oops, wait a minute. Yes, discovery of magnets. So in this PPT, like in this slide, we are going to learn that how magnet was discovered and who discovered it. So a legendary discovery. This was a legendary discovery and this happened around 4000 years ago. Imagine this was happened 4000 years ago. A Greek shepherd named Magnus made an accidental discovery that changed science forever. While walking on a mountainside, his iron tipped stick suddenly stuck into a mysterious black stone. This rock was what? This rock was magnetite, a naturally occurring magnetic mineral. Magnus had discovered the world's first known magnet. This remarkable stone could attract iron objects without any visible force, स्पार्किंग क्यूरोसिटी एंड वंडर. सो इस पीपीटी में इस स्लाइड में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 4000 ईयर्स पहले एक ग्रीक शेफर्ड जिसका नाम था मैग्नस, उसने एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी बनाई थी. डिस्कवर एक्सीडेंटल मतलब अचानक हुई थी वो डिस्कवरी और उसने साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था. वो एक माउंटेन साइड पे चल रहा था एंड उसकी आयरन टिप्ड स्टिक मतलब जिस स्टिक पे आयरन लगा हुआ था वहां पे वो स्टिक एकदम से एक ब्लैक स्टोन पे स्टक हो गई मतलब चिपक गई. सो ये रॉक था मैग्नेटाइट, एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक मिनरल होता है ये. मैग्नस ने डिस्कवर किया था वर्ल्ड का पहला मैग्नेट. ये रिमार्केबल स्टोन अट्रैक्ट कर सकता था आयरन ऑब्जेक्ट को बिना किसी देखे जाने वाले फोर्स के, जिससे क्यूरोसिटी एंड वंडर हमारा वो जाग जाता है. क्यूरोसिटी एंड वंडर. लेट्स move to the next. What is a magnet? Let's see its definition. A magnet is any material or object that produces a magnetic field and attracts specific metals like iron, cobalt and nickel through invisible magnetic force. Natural magnets. सो व्हाट डज दिस डेफिनेशन मीन्स इज दैट मैग्नेटिक मटीरियल है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड और अट्रैक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ मेटल्स को, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स को जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, बिना किसी देखे जाने वाले फोर्स के. ओके एंड इसके भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. तो नेचुरल मैग्नेट्स का मतलब होता है ये नेचर में मिलते हैं मैग्नेटाइट ओर की तरह, जिसको हम लोडस्टोन भी कहते हैं. ओके ये रॉक्स जो है वो आयरन ऑक्साइड कंटेन करते हैं और पोजेस करते हैं नेचुरल, मतलब इनमें नेचर से ही आ जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिना किसी ह्यूमन के यूज करे. तो इट कैन बी आज दैट नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल्स एंड explain what is magnet and two types of it, and it can be like differentiate between natural magnets and artificial magnets. So this is slide, it's an important slide, so just take a screenshot or whatever you want, so you can just study this at the end as a revision, or you can take some notes from my side. Okay, I will add it in the description, and if you want to just ask some chapters from different book or somewhere different, so you can just comment down in the section. Artificial magnets. This is made by humans in laboratories and factories. These magnets are created by magnetizing material. अभी हम ये भी सीखेंगे कि मटेरियल को मैग्नेटाइज कैसे करते हैं, बट ये चीज क्रिएट होती थी मटेरियल को, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करके, जैसे कि आयरन को, स्टील को, कुछ स्पेशल प्रोसेस से, एंड उनको वो और स्ट्रॉन्गर और रिलायबल बना देता था. नाउ वी विल स्टडी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. अच्छा, कुछ चीजें मैग्नेटिक होती है और कुछ चीजें नॉन मैग्नेटिक होती है. अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना कि सम थिंग्स आर लाइक, उसमें से कुछ कुछ स्पेसिफिक मेटल्स होते हैं, तो ये समझाएंगे हम यहाँ पे. अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्शन. नॉट ऑल मटेरियल्स रिस्पॉन्ड टू मैग्नेट्स द सेम वे. मटेरियल्स fall into two main categories based on how they interact with magnetic forces. तो अब हम अट्रैक्शन को, जिससे मतलब किसी चीज से चिपकना, उस चीज को हम समझेंगे.
तो सारे मटेरियल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं मैग्नेट को सेम तरीके में। इसी हिसाब से मटेरियल जो है वो दो तरीके में कैटेगरीज में फॉल करते हैं, एक होती है मैग्नेटिक और एक होती है नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। ये जो मेटल्स है ना वो कंटेन करते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करती है पुल करने में उनको। Now let's see what's non-magnetic material. Non-magnetic materials क्या होते हैं? तो wood, plastic, rubber, glass, aluminium, copper are not attracted to magnets at all. मतलब वो चिपकते नहीं है मैग्नेट से, मैग्नेट उन्हें पुल नहीं कर सकती। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पास करता है राइट थ्रू देम, उनसे ही एकदम, बट वो नहीं चिपक सकता उनसे। जैसे कि हम फन एग्जांपल लेते हैं, एक पेंसिल शार्पनर हैज अ प्लास्टिक बॉडी। पेंसिल शार्पनर के अंदर एक प्लास्टिक बॉडी होती है लेकिन अंदर आयरन की ब्लेड होती है। तो जो मैग्नेट है वो आयरन से ही अट्रैक्ट होगी, प्लास्टिक से तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप उसकी ब्लेड हटा के देखो, वो प्लास्टिक से कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। बट ये घर पे नहीं करना है, नहीं करना, हमें घर पे ब्लेड यूज नहीं करनी है। आप ये ट्राई कर सकते हो कि वो आयरन से चिपक रहा है, बाहर के प्लास्टिक से नहीं चिपक रहा। ओके, नाउ लेट्स स्टडी डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट। अब शेप्स भी होती है अलग अलग मैग्नेट की, तो हम वो अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास बार मैग्नेट, द मोस्ट कॉमन शेप, सबसे कॉमन शेप है, बहुत इजीली मिल जाएगी। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है ये, पोल्स लोकेटेड होते हैं दो फ्लैट एंड्स पे। ये एक पोल यहाँ पे होता है एंड एक पोल यहाँ पे होता है। इट्स यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड कंपासेस। कंपास में भी ये मैग्नेट यूज होती है, ये भी हम पढ़ेंगे डायरेक्शन में जब कंपास की बात आएगी। देन आती है हॉर्स शू मैग्नेट, सॉरी, हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, दिस इज लाइक अ टंग ट्विस्टर, एस एंड शो। ओके, कर्व्ड लाइक यू लेटर की तरह होता है। आप देख ही सकते हो ये ऐसे यू फॉर्म कर रहा है। यस, अ हॉर्स शू इसे बोला जाता है। जो दोनों पोल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, मतलब ऐसे ना, ये देखो, ये जैसे बीच में ब्लैक लाइन दिख रही है इसीलिए बनाई गई है ये, क्योंकि यहाँ पे इमेजिन करते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल है एंड यहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, ऐसे होता है, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, जिससे स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है और ग्रेट होता है हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों मैग्नेट पास में होती है। आपने देखा होगा हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं लोग, रिवर के अंदर डालते हैं इन चीजों को, मैग्नेट्स को। देन आती है सिलिंड्रिकल मैग्नेट। सिलिंड्रिकल मैग्नेट राउंड होती है और ट्यूब शेप की होती है या फिर डिस्क शेप की कह सकते हो। कुछ मैग्नेट्स ऐसी, देखो सर्कल शेप दिख रही है, ऐसी भी आती है, और कुछ कुछ ऐसी भी होती है जिसमें बीच में ऐसे होल होता है, रिंग वैसी शेप की। ओके, पोल्स आर ऑन द फ्लैट सर्कुलर फेसेस। ये एक फेस होता है, ये फर्स्ट फेस है, एंड इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा सेकेंड फेस होता है। कौन सा फेस होता है? सेकेंड फेस होता है। तो उसमें दोनों तरफ, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा एंड एक तरफ साउथ पोल होगा, एंड नॉर्थ पोल के लिए हम ये एन यूज करते हैं, साउथ पोल के लिए एस यूज करते हैं। ओके, सो ये यूज होती है मोटर में, स्पीकर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब ये मत करना कि हम निकाल निकाल के देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। आप अपनी घड़ी में जो सेल चेंज करते हो, तब आपने देखा है ऐसे ही छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, वो। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा है इधर छोटा सा, ईच मैग्नेट शेप सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस इन डेली लाइफ। हर मैग्नेट की शेप ना अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है। टॉयज से लेकर रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स, रेफ्रिजरेटर पे आप मैग्नेट्स लगाते हो, इंडस्ट्रियल मशीनरी की मैग्नेट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट, सबकी अलग अलग मैग्नेट्स होती हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके की मैग्नेट्स होती है। अभी हमने ये तीन पढ़ी। नेक्स्ट लेट्स कम टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। टू पोल्स होते हैं हर मैग्नेट में, नो मैटर उसकी शेप कैसी हो, उसके अंदर दो पोल्स ही होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी बताया ना, एन फॉर नॉर्थ पोल, एस फॉर साउथ पोल। यू कैन नॉट हैव अ मैग्नेट, अब कभी भी एक ऐसी मैग्नेट बनी नहीं है जिसमें एक ही पोल हो। अब उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोल्स पे। आप कभी भी आयरन फिलिंग्स को या पेपर क्लिप्स को, कुछ भी मेटल की चीज लो, बट छोटी लेना, साइज में जो छोटी हो, उसको एक बार मैग्नेट पे रखो। देखो साइड में जो उसके कॉर्नर्स है ना, उसमें ज्यादा मैग्नेट आएगी, सॉरी जो मेटल है वो ज्यादा चिपकेगा, एंड मिडल में कम, क्योंकि मिडिल एरिया में वीकर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। अब नेचुरल डायरेक्शन, जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, मतलब फ्रीली आप उसको एक धागे से बांध के छोड़ दो, हिला दो पूरा एंड छोड़ दो, वो हमेशा अर्थ की नॉर्थ एंड साउथ, मतलब जहां पे नॉर्थ है वहां पे डायरेक्शन में रुकेगी, और जहां पे साउथ है वहां पे रुकेगी, नॉर्थ एंड साउथ पोल के अकॉर्डिंग, जो कि अलाइन करता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ऑटोमेटिकली खुद से ही हो जाता है, सोचो ये जादू की तरह है।
Then it's attraction and repulsion. So unlike poles attract each other, north attract south, like poles repel each other. तो इसमें एक पॉइंट है कि हमेशा ना वो बात होती है ना कि दो अलग लोग जुड़ जाते हैं एंड दो सेम लोग मतलब उनकी अच्छी नहीं बनती, समझ सकते हो। तो साउथ एंड साउथ रिपेल नहीं करता, रिपेल करता है मतलब एक दूसरे से चिपकता नहीं है। वो नॉर्थ एंड नॉर्थ भी एक दूसरे से नहीं चिपकता, लेकिन नॉर्थ और साउथ या फिर साउथ और नॉर्थ जो कि सेम बात है, वो हमेशा अट्रैक्ट होगा। ये फंडामेंटल रूल गवर्न्स करता है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रूल है हर मैग्नेट का, इसके रूल में चेंज कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज हाउ टू मेक अ मैग्नेट। वाओ, ये एक्टिविटी है, करना हो तो कर सकते हो एंड अगर नहीं है सामान तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट बहुत मजेदार एक्टिविटी है। सिंपल एक्टिविटी एट होम। मटेरियल्स चाहिए, एक आयरन नेल, एक स्टील स्ट्रिप या एक और एक बार मैग्नेट और कुछ स्मॉल पेपर क्लिप्स या आयरन फिलिंग जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर है, हमें आयरन नेल को टेबल पे रखना है और एक पोल मैग्नेट का लेना है और उसे रब करना है पूरे नेल में और डी बनाते जाना है सेम डायरेक्शन में। एंड ये 30 से 40 टाइम करना है बिना किसी रुकावट के एंड बिना किसी डायरेक्शन के बदलाव के। ओके, रिजल्ट क्या होगा? आयरन नेल भी टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। हमेशा के लिए कोई भी चीज को आप ऐसे करोगे तो नहीं बनेगा, वो सिर्फ लैबोरेटरी में हो सकता है, बट फिर भी आप इसको बना सकते हो, घर पे जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो बहुत जस्ट मोर, आज जितना बार करते जाओगे आपने 100 टाइम्स किया और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मैग्नेटिज्म उसकी। ऐसा क्यों होता है? Rubbing aligns the tiny magnetic domains inside the iron and in one direction, creating magnetic property. अब रबिंग क्या है? वो जो धीरे धीरे मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ना आयरन के अंदर, उसको अट्रैक्ट करता जाता है, अट्रैक्ट करता जाता है और जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बन जाती है। तो दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन इन गिव रीजन की when we make a magnet, why like it's given an example that I made an iron nail using a magnet, I magnetized it on my own. तो वो क्यों होता है? why, इधर why एक गिव रीजन के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये देखो, प्रिपेयर नील, यूज डीन आयरन नेल व्हाटएवर, स्ट्रोक नेल, रब बार मैग्नेट 30 to 40 टाइम्स, समझ गए। देन टेस्ट करने के लिए पेपर क्लिप्स यूज कर सकते हो। तो ये जो सिंपल मैग्नेटाइजेशन की टेक्निक है, ये ट्रांसफर कर देती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को परमानेंट मैग्नेट से एक आयरन ऑब्जेक्ट में। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कंपास। अब डायरेक्शंस भी तो ढूंढनी है, अभी एग्जांपल पढ़ा ना कंपास का, वही। तो नेविगेशन टूल, एक मैग्नेटिक कंपास एक एंशिएंट या नया भी कह सकते हो, मॉडर्न भी एंड एंशिएंट भी कह सकते हो, ठीक है। ये गाइड करता है एक्सप्लोरर को, सेलर को, ट्रैवलर को, थाउजेंड्स ईयर्स तक गाइड करता रहा है। अब ये काम कैसे करता है? कंपास के अंदर ना एक स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल होती है, इधर जैसे आपको दिख रही है ना, ये सॉरी ये बिग वन, दिस बिग वन, ये मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है, और whichever needle it is, I don't remember for now, but let's take this as a needle. okay, मैग्नेटाइज नीडल होती है जो कि बैलेंस करती है एक पाइवट पॉइंट पे, ये मिडिल पॉइंट दिख रहा है, ये बोला, इस पे बैलेंस करती है। ये नीडल रोटेट कर सकती है फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, उसके साथ अट्रैक्ट करती है। अर्थ भी सोचो एक आयरन की बॉल है, उसके साथ अट्रैक्ट कर रही है हमारी मैग्नेट। हमारा प्लैनेट जो है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसे ही वो अलाइन हो जाता है, जैसे ये नॉर्थ के साथ ये अभी जिस डायरेक्शन में मैग्नेट है, तो ये उसका नॉर्थ पोल है हमारा, एंड ये साउथ पोल है हमारे अर्थ का। ओके, द कंपास की जो नीडल है वो खुद से अलाइन हो जाती है इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सोचो, रीडिंग डायरेक्शन अब कैसे रीड करेंगे? जो रेड टिप है नीडल की वो हमेशा नॉर्थ में होगी। अब जैसे आपको नॉर्थ पता चल जाता है तो आप साउथ, ईस्ट, वेस्ट इजीली फाइंड कर सकते हो। यार ये तो बहुत ही इजी ट्रिक है, तो इसे आप ट्राई जरूर करना। अगर कंपास नहीं है तो फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देना मैग्नेट को, उससे भी हो जाएगा। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अभी पढ़ा हमने, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, सिमिलर पोल्स रिपेल, फंडामेंटल लॉ बन जाता है इनसे इनका। तो अपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं? जब आप उनको पास में लाओगे ना, तो एक का साउथ पोल और एक का नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे के एकदम फोर्स के साथ खींचेंगे, आओ मेरे पास, तुम मेरे पास आओ। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मैग्नेट एक साथ चिपक जाती हैं। देन सिमिलर पोल्स रिपेल, जब आप दोनों नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल दूसरा भी नॉर्थ पोल को ऐसे पुल करोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा चिपचिपा फील करती है। यार ये मेरे जैसा ही सेम बंदा है, मेरे को इसके साथ दोस्त नहीं बनना, मेरे को अच्छा इंसान चाहिए, मेरे से दूसरा, उससे नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जो मैग्नेट है ना, हमेशा एक दूसरे को पुल करती है, हट छी
तो जा पुश करती है, आई मीन रेपेल करती है, ठीक है। फंडामेंटल लॉ, ये बिहेवियर एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक इंटरेक्शंस को एवरीवेयर, हर जगह, जैसे कि कंपास में, मैगलेव ट्रेन फ्लोट में, अंडरस्टैंड करने में अट्रैक्शन को, रिपल्शन को, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है, हर जगह यूज होती है ये चीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन और रिपल्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। सो यस, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पोल अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट पोल्स और सिमिलर पोल्स तो रिपेल हो जाते हैं भाई। एंड ये एक फंडामेंटल लॉ बन चुका है, क्योंकि ये हर चीज में यही लॉ यूज होता है। नेक्स्ट इज व्हाई मैग्नेट्स आर फन एंड यूजफुल। मैग्नेट्स फन और यूजफुल क्यों है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली स्लाइड है। की प्रॉपर्टीज, मैग्नेट अट्रैक्ट स्पेसिफिक मटेरियल्स एंड मेटल, सॉरी, मैग्नेट हमेशा एक स्पेसिफिक मेटल को अट्रैक्ट करती है एंड ऑलवेज हैव टू पोल्स, एंड हमेशा दो पोल्स होते हैं उनके पास। देयर इनविजिबल फोर्स, उनका जो इनविजिबल फोर्स है वो वर्क कर सकता है थ्रू मटेरियल, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक के साथ। नेक्स्ट इज मेनी फॉर्म्स अवेलेबल है वो बार मैग्नेट में, हॉर्स शू में, सिलिंड्रिकल शेप में। यू कैन इवन क्रिएट योर ओन मैग्नेट एट होम यूजिंग सिंपल मटेरियल्स, अभी हमने सीखा ना। देन प्रैक्टिकल यूजेस क्या है भाई उसके, फाउंड इन कंपासेस फॉर नेविगेशन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्पीकर्स, हार्ड ड्राइव्स, MRI machines and countless toys. Magnets make modern life possible. ये यूज होता है कंपास में नेविगेशन के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, स्पीकर्स में, हार्ड ड्राइव्स में, MRI मशीन्स में एंड काउंटलेस टॉयज में, बहुत सारे टॉयज में मैग्नेट्स मॉडर्न लाइफ को पॉसिबल बना पाते हैं। देन इट्स साइंटिफिक वंडर, लर्निंग अबाउट मैग्नेट ओपन डोर टू अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। मैग्नेट के बारे में सीखना ना हमारे लिए दरवाजा खोलने जैसा होता है फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हम फिजिक्स के बारे में सीख रहे हैं, फोर्स के बारे में, यस, Earth's magnetic field and electromagnetic forces that power our technology. अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं जो पावर करते हैं हमारी टेक्नोलॉजी को, ये फिजिक्स के बारे में सीखना है। नाउ लेट्स एंड दिस। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू सम रिविजन क्वेश्चंस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, और you can just comment down the answers, okay? What is a natural magnet called? Answer this, okay? Name two magnetic materials. What happens when like poles come together? Remember what I have taught you, okay? Which instrument helps us find direction? Now write the answers in comment section, or just pause and answer to yourself, and better would be that you write the answers in comment section, because I can check, and if you are wrong, so I'll just tell you. Now let's end this thing. I hope this chapter is now clear to you. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the Scholar Garden. In the next video, we will continue with more interesting topics. Until then, keep learning and keep blooming. And just tell me if you want any other book, any other like something different chapter or any different subject, whatever you want, just tell me and I'm here for you. And this was a quick chapter, and when you go through the chapter you will experience all the same thing that are in my PPT, and you can use this PPT as a help, and I'll just add this in the description box so you can just watch it. And if you want to get notes, just comment down me notes, and then I'll just tell you whole guidelines, okay? So bye bye, meet you in the next video. I hope this chapter is clear, and if you want its NCERT solution, just comment down I want NCERT solution, so I will just make the next video on these this chapter's NCERT solution. And I hope ये मेरी पहली वीडियो थी तो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए ये वीडियो, एंड मैंने अपने सारे एफर्ट्स डाले हैं। तो थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड्स है 6th क्लास के, उन्हें आप ये वीडियो भेज सकते हो, मतलब 7 से नीचे की सारी क्लासेस, तो आप मेरे को उनका बता सकते हो। आई विल क्रिएट इट फॉर यू, ओके? बाय बाय, एंजॉय योर डे।